Welcome back everyone. In this session, we will start from speed of wave. So we have two type of wave. That is, one is transverse wave and another one is longitudinal wave. So first of all, we will discuss about the speed of the transverse wave. What is the speed of the transverse wave? You know what is transverse wave? First of all, I say what is the transverse wave? Transverse wave normally generated in the solid medium or in the surface of the liquid. In transverse wave, propagation of the wave direction and vibration of particles are perpendicular to each other. That means vibration particle will perpendicular to the propagation of the wave direction. So what is the speed of the transverse wave? So we discuss that transverse wave in string. What is the speed in string? Like this is a string, and what is the speed of transverse wave in this string? So let a string of length L and tension T, total mass of that string, that is M, mass of string, not anything else. Mass of string, that is capital M, length, that is L. So mass per unit length, that is equal to mu, that is M upon L. Now what is the speed in this string? That is V equal to root T upon mu. We have no derivation, you just have to remember the formula. क्या करना है आपको? फॉर्मूला रिमेंबर करना है कि क्या होगा स्पीड का फॉर्मूला. ट्रांसफर वेव की स्पीड क्या होगी? रूट टी अपॉन म्यू, टी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड म्यू मास पर यूनिट लेंथ. दूसरा कोई भी मीडियम है जिसके अंदर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन है. क्या डिफाइन है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नीटा एंड डेंसिटी रो इज डिफाइंड. then speed in this medium of transverse wave, that is V equal to root neta upon rho. Root neta upon rho. What is the neta? Modulus of rigidity, and rho, that is density of the given medium. Density of given medium. Now if for the given medium bulk modulus जिसको हम लोग B से लिखते हैं, या कैसे लिख सकते हो आप लोग चाहे तो K से भी लिख सकते हो, B से भी लिख सकते हो और K से भी लिख सकते हो. And modulus of rigidity both defined. That means K and neta both are defined. In this case, what is the speed of wave? That is K plus 4 by 3 neta upon rho. K bulk modulus of elasticity, neta modulus of rigidity, and rho same density of the medium. Next thing, speed of the longitudinal wave. For any longitudinal wave, what is the longitudinal wave? You know, longitudinal wave that can generate in solid, liquid, and gas in all three media. In all three media, that longitudinal wave can generate. So for the propagation of the longitudinal wave, we required density and modulus of elasticity. If modulus of elasticity, any modulus of elasticity, may be the Young modulus of elasticity, shear modulus of elasticity, or modulus of rigidity, or bulk modulus of elasticity. So for any medium, here E is the bulk modulus of elasticity and rho is the density. So speed of the longitudinal wave, that is root E upon rho. Root E upon rho. Speed of the longitudinal wave in a string or in a wire, what is the speed? That is gamma upon rho. What is the Y? Young modulus of elasticity. Y is Young modulus of elasticity, rho density of the medium. Next one, speed of the sound wave. Sound wave is a type of longitudinal wave. Sound wave is a type of longitudinal wave, and in air medium, when we consider that bulk modulus of elasticity, that normally equal to the pressure. Normally equal to the pressure. So speed, that is root P upon rho. This is the formula given by Newton. So according to Newton, propagation of the sound wave from any medium, that is an isothermal process. Isothermal process means temperature of the medium will be remains constant when sound wave travel from this given medium. But according to this formula, when we find the speed, that is 280 meter per second, that is not exactly speed, because sound travel with the speed of 332 meter per second in air medium. So this is correction is done by Newton's pupil. Newton के चेले ने correction किया कि सर ये ऐसा नहीं होता है, इट इज़ नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस. न्यूटन के चेले ने क्या बोला कि भाई सर आपने जो बताया आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा नहीं होता है. साउंड का प्रोपोगेशन जो है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, स्पीड ऑफ द साउंड विल बी गामा पी अपॉन रो. गामा दैट इज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, Cp upon Cv. Cp upon Cv we can find according to monoatomic, diatomic and triatomic gases as we discussed in the KTG.
You know what is the gamma for diatomic? 1.4. For triatomic, everything we know or not? सब लिखा रखा है गामा के बारे में. Okay. Next one is effect of the temperature on the speed. How the speed will change when temperature of medium change. How the speed. So you know P equal to, we can replace gamma rho first of all, mass upon volume. PV equal to, you know, RT. PV equal to RT. So here from this one we find that V directly proportional to root of T. Root of T, that means speed that is directly proportional to square root of temperature. With the increasing temperature, speed will also increase. When we solve, we will get a equation V equal to V naught plus 0.61 delta T. V naught, that is speed at normal temperature, or we can say at 0 degree Celsius. So this is V naught, and when we increase the temperature, speed will increase by 0.61 meter per second with per degree Celsius. With per degree Celsius. So 0.61, that is known as the temperature coefficient of speed. 0.61 is known as the temperature coefficient of speed. That means by 1 degree Celsius increment of the temperature of the any medium, speed of the wave will increase by 0.61 meter per second, or we can say 61 centimeter per second. 0.61 meter per second or 61 centimeter per second. Now transverse law of propagation of the wave. What is the transverse law? That we discussed, that V equal to root P upon rho, or one more formula that we also know, V equal to root T upon mu. Root T upon mu. So speed that is directly proportional to, we can say, tension. Speed inversely proportional to mass per unit length. Speed directly proportional to tension, and speed inversely proportional to mass per unit length. We can relate this one with the density as well. So from here we will find that speed that is inversely proportional to square root of density. As the density increases, speed will decrease. That's true. So this is transverse law of propagation of the wave. Speed doesn't depend on the pressure. Pressure पे depend नहीं करती है, and humidity पे depend करती है. When increase the humidity, speed will also increase. जैसे अपन नॉर्मल दिनों में एक खुला मौसम होता है, उसमें अपन साउंड दूर तक सुनाई नहीं देती है. वही बारिश का मौसम होता है, ह्यूमिड मौसम होता है, तो उसके अंदर साउंड हमें बहुत दूर तक सुनाई देती है. दैट मीन्स स्पीड इन द ह्यूमिड एनवायरमेंट विल बी इंक्रीज. समझ में आगे बात? दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ द वेव्स इन डिफरेंट मीडिया. नाउ वी विल start, that is very important thing, progressive wave. Progressive wave. You know what is the progressive wave? What do you mean by progressive? Progressive wave. What is progressive wave? क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेस, जैसा नाम है, प्रोग्रेस कर रहा है, वेव जो चलती है, आगे मूव करती है. वेव जो आगे मूव करती है, विच प्रोपोगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से मूव फर्दर, दैट इज नोन एज द प्रोग्रेसिव वेव. लाइक वी हैव ए वेव लाइक दिस. दिस इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएट बाय द वेव in form of sinusoidal form. In form of sinusoidal. Initially start from here, t equal to 0. This disturbance travel in this direction and disturbance occur like this here. So this disturbance after that time t, initially was here, यहाँ पे था, t टाइम पे बाद क्या आ गया, यहाँ पे डिस्टर्बेंस ये आ गया. यहाँ अपन मान लेते हैं कि इसका टाइम के साथ इस तरह कुछ है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो क्या होगी? लेट एक्स, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? एक्स. और साउंड की स्पीड कितनी है, या वेव की स्पीड जो है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और स्पीड दैट इज इक्वल टू वी. स्पीड कितनी है? वी. सो नाउ व्हाट इज द पोजीशन हियर? टाइम टी, दैट इज एक्स अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस इज द टाइम और नॉट? दिस इज द टाइम, है कि नहीं है? अब अगर मैं इसको इससे रिलेट करना चाहूं, इसके साथ इस डिस्टर्बेंस को इस डिस्टर्बेंस से रिलेट करना चाहूं, सो एक्चुअली पोजीशन वाइज हियर दिस डिस्टर्बेंस वाज जस्ट हियर बिफोर टाइम टी. बिफोर टाइम टी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू?
if this is time t equal to 0, can I write time difference t dash, actually t dash, that is x upon v minus t. This is also time, this is also time. मैं इस टाइम से किसको रिलेट कर रहा हूं? इस पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को मुझे रिलेट करना है. तो नॉर्मली वी राइट इक्वेशन y इक्वल टू a sin omega. Here I will write omega t dash, omega t dash. So here y equal to a sin, क्योंकि यहां पे हम पोजीशन को साथ में रिलेट कर रहे हैं, टाइम के साथ किसको रिलेट कर रहे हैं? पोजीशन को, विद द स्पीड. सो ओमेगा x upon v minus t, x upon v minus t. So y equal to a sin omega x upon v माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी. एक चीज हम लोग थोड़ी सी गलती नहीं कर रहे हैं इसके अंदर? छोटी सी गलती कर रहे हैं. हम लोग टी टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, तो टी टाइम के बाद के लिए तो हमारे पास ये जो इनिशियल टाइम था, इसको फाइनल टाइम में से क्या करेंगे? हम टी टाइम बाद किसी पर्टिकुलर पोजीशन को ले रहे हैं, टी डैश टाइम जो है, तो क्या करेंगे हम लोग? जो इनिशियल टाइम है उसको फाइनल में से क्या करेंगे? माइनस. तो यहां से हमें ये चीज देखनी पड़ेगी. इसको थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया बेटा. एक मिनट, इसको आप क्या लिखोगे? यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. टी डैश इक्वल टू आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? टी माइनस, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा इससे, ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी. अब यहां देखिए, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेंगे. वैसे इसको ज्यादा आपको कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. मैं अभी सिंपल फॉर्म बताऊंगा, वही आपको याद रखनी है. ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स. अब यहां पे देखिए, ये ओमेगा अपॉन वी क्या होगा पता है? ओमेगा अपॉन वी क्या होगा? ओमेगा अपॉन वी, यहां देखो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2 पाई अपॉन टी, ये तो सुना है. v इक्वल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ द वेव, दैट इज लैम्बडा अपॉन टी. डिस्टेंस क्या होती है वेव के अंदर? नॉर्मली वेवलेंथ लैम्बडा से कंसीडर करते नहीं करते हैं? टी टाइम पीरियड. तो ओमेगा अपॉन वी जब आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा बेटा बताओ? 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन लैम्बडा. टी से टी क्या हो जाएगा? तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा. 2 पाई अपॉन लैम्बडा क्या आएगा बताओ? पता है? एक चीज सुनी थी हमने, के प्रोपोगेशन कांस्टेंट. 2 पाई अपॉन लैम्बडा, दैट इज propagation constant. That is the, what is the propagation constant? It is the phase difference between the particle at a unit distance. Phase difference between the particle at a unit distance, that is the propagation constant. So now when we consider this one, so we will write y equal to a sin omega t minus kx. This is the very important equation of progressive wave moving in positive x direction. Equation of progressive wave moving in positive x direction. Equation of progressive wave moving in positive x direction, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब अगर यही पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता तो इक्वेशन क्या होती? इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. इन नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या होता पता है आपको? क्या होता? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. ए साइन ओमेगा टी, तो ये किस में मूव करती? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, और वो क्वेश्चन में पूछे कि ये वेव किस डायरेक्शन में मूव कर, आप कैसे बताओगे? क्वेश्चन बनता है बेटा सिंपल सा, ध्यान रखना. ये आपको तो केवल इक्वेशन ध्यान रखनी, इसी इक्वेशन बेस पे क्वेश्चन बनता है, वो ज्यादा ऊपर वाले की ज्यादा जरूरत नहीं है. जो हमने डराइव किया है ना, इसकी कोई खास जरूरत नहीं. आपका क्वेश्चन जो बना है वो कैसे बनेगा? इस इक्वेशन बेस पे. अब कुलदीप ऐसा है, यहां मैंने एक इक्वेशन दे दी y इक्वल टू ए साइन
माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, और मैंने पूछ दिया कि ये इक्वेशन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा हुआ है। अगर केवल आप रट्टा मारोगे यहाँ पे प्लस के एक्स है, इससे अगर देखोगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी जो टाइम का कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव करना है। अगर यहाँ से हम लोग नेगेटिव कॉमन लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा उनके पास, ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, माइनस वाला होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये माइनस आ गया। अब बताओ ये किस डायरेक्शन में जा रही है वेव, तो ये किस में मूव करेगी, इस नेगेटिव का मतलब तो क्या हो गया, जहां इनिशियल फेज पॉजिटिव में जा रहा था वो इनिशियल फेज किस में आ जाएगा, नेगेटिव। और कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, पर डायरेक्शन किस में जाएगी, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। किस में मूव करेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अगर यही वेव इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखी हुई है, ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं तो पूरा माइनस बार आ जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये किस में मूव करेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब ध्यान रखना, जब ओमेगा टी और साथ में जो कोफिशिएंट है उन दोनों के साइन डिफरेंट है तो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, और दोनों के साइन सेम हैं तो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। अब डायरेक्शन में कभी गलती नहीं करोगे। ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बोथ मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स बोथ मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बोथ मूव इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस बेस पे, जो आपका एग्जाम में कैसे बन सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी माइनस 100 पाई एक्स, 100 पाई टी माइनस 100 पाई एक्स, देन फाइंड amplitude of wave, amplitude number 1, number 2 angular frequency, number 3 frequency, number 4 time period, number 5 propagation constant, number 6 wavelength, number 7 wave number, number 8 displacement, t equal to 1/200 second and x equal to 0, number 9 displacement at t equal to 0 second and x equal to 1/100 मीटर। ये चीजें आपके पास हैं, कैसे फाइंड करोगे, क्या होगा बताओ। यहाँ पे पोजीशन भी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे ये वेव की पोजीशन दिखा रहा है, और जो वाइब्रेशन होगा डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, क्योंकि वेव तो आगे मूव करती रहेगी। तो वेव किस टाइम पे किस जगह पे है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है दैट इज द डिफरेंट थिंग। यहाँ हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट पार्टिकल वेलोसिटी इज रिमेनिंग चेंज।
वेव एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो लगातार क्या होता रहता है, वो तो चेंज होता रहता है, तो उसकी स्पीड भी लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, वो अलग चीज है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है वेव वेलोसिटी, नंबर 10 हम बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, वेव वेलोसिटी भी इसमें पूछ सकता है, व्हाट इज द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। अगर ये कंसेप्ट सारे सीख जाओगे आप तो आपका इसके अंदर जो छोटा वैसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा उसको आप आराम से कर दोगे। क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, इसके अंदर कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखोगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ये कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इक्वल टू पहले लिख दीजिए 10 साइन 100 पाई टी माइनस 100 पाई एक्स। कंपैरिजन शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या पूछा, एम्पलीट्यूड, तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड ए है यहां पे क्या इसकी किलो ये 10, तो सबसे पहला पार्ट अपना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो ए इक्वल टू कितना होगा 10 मीटर, यूनिट क्या होती है एम्पलीट्यूड की, मीटर, 10 मीटर। दूसरा पार्ट पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, क्या होती है ओमेगा, ओमेगा यहां पे क्या कंपेयर करो, देखिए ये क्या है 100, क्या है 100 पाई, 100 पाई। तीसरा पार्ट क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा पार्ट क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है एफ निकालना है, तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा 2 पाई अपॉन है ओमेगा बाई 2 पाई लिख दूं मैं, भाई 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा होता है, तो 2 पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब बताओ ओमेगा कितना बेटा 100 पाई अपॉन 2 पाई, आंसर कितना आएगा 50 हर्ट्ज, 50। फिर पूछा टाइम पीरियड टी, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल टी इक्वल टू 1 अपॉन एफ से निकाल सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई अपॉन ओमेगा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 50, तुम डायरेक्ट लेते हो, तो 1 अपॉन 50 का मतलब क्या हो गया, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाया तो कितना 10 आया, जाएगा नहीं, 0.0 फिर 100 हो गया 2, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला पार्ट क्या पूछा इसने, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन कांस्टेंट दैट इज के को कंपेयर करो सीधा, यहां से देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे 100 पाई है, के भी कितना है आपका 100 पाई, के कितना है 100 पाई। फिर क्या पूछा अगला पार्ट, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ तो किससे लिखते हैं लैम्बडा से, किससे लिखते हैं, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अपॉन के, हैं देखो ये फॉर्मूला याद होगा, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 पाई अपॉन के, 2 पाई अपॉन कितना करेंगे हम लोग 100 पाई, कितना होगा हमारे पास, ये भी 1 अपॉन 50 हो गया, 0.02 रेडियन पर सेकंड, पर सॉरी पर मीटर, रेडियन पर मीटर। अरे क्या लैम्बडा निकाल रहे हैं ना, लैम्बडा किसमें होता है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, ये होता है किसमें, ये होता है रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, और ये किसमें होगा मीटर में, लैम्बडा मिल गया। फिर अगला क्या पूछा इसने, वेव नंबर, क्या पूछा है वेव नंबर कैसे निकालोगे बेटा, वेव नंबर, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, 1 अपॉन लैम्बडा कितना आया कुलदीप, ये इसको सीधा इससे लिख दे 1 अपॉन 50, तो 1 अपॉन 50 ऊपर चला जाएगा,
50 वेव्स। वेव नंबर का मतलब समझते हो, पर सेकंड कितनी वेव पास हो रही है पर, तो कितना हो गया 50 वेव्स पर यूनिट एरिया। अब अपने पास देखिए अगला क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, y इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी माइनस 100 पाई एक्स। इसमें वैल्यू डालेंगे, पहले वैल्यू किसकी डालेंगे बेटा बताओ, किसकी वैल्यू डालेंगे, t दे रखा 1/200, x दे रखा है 0, तो y इक्वल टू 10 साइन 100 पाई इंटू 1/200, ये आ गया, माइनस तो पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x जैसे 0 डालेंगे ये वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब उन पास देखो ये कैंसिल हो गया, 100 तो π/2 बना, क्या बना y इक्वल टू 10 साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है विक्रम 1, तो कितना आएगा 10 इंटू 1 10 मीटर, कितना आएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो एम्पलीट्यूड के इक्वल है। ये कौन सा पार्ट था, 8th नंबर। नेक्स्ट जो 9th पार्ट पूछा वो क्या पूछा पता है, x को 0 डालेगा तो पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी 0। फिर 9th पार्ट जो है उसमें आपका y इक्वल टू, वापिस इक्वेशन डालें, 10 साइन 100 पाई t की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस 100 x कितना है 1/100, यह आया ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू 10 साइन 0 माइनस पाई, साइन पाई कितना होगा वैसे भी माइनस 10 साइन पाई हो जाएगा, ये साइन के अंदर माइनस बार आता है, पाई की वैल्यू 0 ही होती है, तो y भी कितना आएगा आपका 0। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ है मेन पोजीशन पे। एक पार्ट और बच गया इसमें, वेव वेलोसिटी, क्या बच गया, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है बेटा, v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी, लैम्बडा कितना है, अभी निकाला लैम्बडा आपने, कितना था लैम्बडा, ये रहा ना लैम्बडा 0.02, और टी भी कितना है 0.02, 0.02 अपॉन 0.02, आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बना सकते हो प्रोग्रेसिव वेव के रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं। पक्का सीधा क्या करना है, वेव का कंपैरिजन करना है, क्या करना है वेव का कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन।